Hello, aspirants. I hope all of you are doing well. Welcome to AR Pravas Academy. Today, we are going to discuss the topic lakes of Jammu and Kashmir and Ladakh. But this is the set one. So, here I am going to discuss only about the lakes of Kashmir. I am only going to discuss about the lakes of Kashmir. So, remember, we are going to discuss lakes of Kashmir. There will be around 20 MCQs about this, which are mostly based on the PYQs from the JKSSB. So, this is very important lecture. Please watch the lecture, whole lecture, so that you can get the maximum information and maximum facts. And this is a part of my JKSSB 1000 MCQ series, in which I'm going to make you ready for any exam like Junior Assistant exam, SSB FA exam. So all these exams, this is the common syllabus portion that we have in every exam. So this is going to be very important. And one more thing, if you're not subscribed, please subscribe to my channel. Let's go straight away to the questions and discuss each and every question with the facts related to them. I hope you have your copy and pen with you so that you can note down these facts. So the first question here is, the first question says, which lake is known historically as Mahapadmasar and was referred to as Bular by Al-Biruni? So the first question says about the Mahapadmasar. Which lake is known as Mahapadmasar? So the lake which is known as Mahapadmasar is Vellore Lake. You know that this fact, you must be knowing. But also remember that Al-Biruni has mentioned it as Bular or Bular, whatever you pronounce this. He has mentioned this lake as Bular in his scripts. So this is important to remember. Few more things that are very important here. 1 minute. Few more things that are very important here that I'm going to talk about. This Vellore Lake is mostly comes under Bandipora district. So Bandipora district you have to remember. And this Bandipora district is sometimes referred to as Port of Vellore. This is referred to as Port of Vellore. So this is important as well. And this lake is of tectonic origin. Sometimes they may ask you which of the following lakes is having a tectonic origin. So you must remember that this Vellore Lake is of tectonic origin. So you have to remember this tectonic origin. What does that mean, tectonic origin? It is created by the tectonic activity in which two plates collide with one another, and there is the release of energy, and we are going to discuss that in geography. So remember this has tectonic origin. And one more thing that you need to remember here is that this is the remnant of ancient lake Satisar. This Vellore Lake is जो यहाँ पे पुराना एक लेक हुआ करता था उसको बोलते थे सतीसर. ये उसी का रेमिनेंट बताया जाता है, यानी कि उसी का आप बोल सकते हैं बचा कुचा जो है एक नई मॉडिफाइड फॉर्म में है, उसको सतीसर बोलते थे, उसका है. ये आपको याद रखना है. इसके साथ-साथ कभी-कभी पूछा जाता है तो Vellore Lake lies at the foothills of which mountain range या which mountain? Then you have to remember this is at the foothills of Harmukh mountain. This is at the foothills of Harmukh mountain. So this is also important. This is at the foothills of Harmukh mountain. This Vellore Lake is also a Ramsar site. This Vellore Lake is also a Ramsar site. This was designated Ramsar site in 1990. So remember this fact as well. In Jammu and Kashmir, we have 4 Ramsar sites in total. I'm not going to discuss all of them here, but remember this Vellore Lake is one of them. This is the Ramsar site recognized under Ramsar Convention. So these are the important facts that you have to remember. Now moving to the question number 2. Question number 2 is, who constructed the artificial island Zanalang in Vellore Lake in 1444 AD? This is pretty easy to remember if you consider this name Zanalang. Zanalang is because of Sultan Zainul Abidin. So this was Sultan Zainul Abidin who ruled this valley, or you can say Jammu and Kashmir, from 1420 to 1470 AD. 1420 to 1470 AD, he was the ruler of this, and he had made this Zanalang, that is the artificial island in Vellore Lake. This is also related with Vellore. So remember this. Also, sometimes it is asked about the Vellore Conservation and Management Authority, WUCMA, Vellore Conservation and Management Authority. इसको हम वुकमा के नाम से जानते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब एस्टैब्लिश की गई है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2012. एक मैनेजमेंट अथॉरिटी जो इसको कंजर्व और मैनेज करने में हेल्प करेगी, दैट वाज क्रिएटेड इन 2012 और इसका नाम दिया गया था वुकमा. वुकमा इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ Vellore Conservation and Management Authority. So these are the facts that you have to remember, and these are asked already in JKSSB. Next question, which lake is the deepest freshwater lake in Jammu and Kashmir? Now when we talk about the deepest lake, the deepest lake is on the Mansbal Lake. Here the answer is Mansbal Lake. But what are the other facts that you need to remember? Deepest lake in Jammu and Kashmir, it is Mansbal Lake. This Mansbal Lake is also called as Supreme Gem. This is also called as Supreme Gem of all Kashmir lakes. Supreme Gem of all Kashmir lakes. So this is the important thing that you need to remember. This is approximately 13. Iski jo depth hai, that's approximately 13 kilometer considered. And this is considered 13 kilometer deep. So you have to remember this. And this is called the Supreme Gem of all Kashmir lakes. Here, this is famous for lotus. This lake is famous for lotus cultivation. And this lotus is known as
If we go to the botanical name, that is Nilambo nucifera. Nilambo nucifera. This might be Oscar as well. So remember this. And also one more thing that is important here, that this Mansba Lake. This Mansba Lake is there is a history point of from history point of view. You have to remember that the Jaroka Bagh is along the, or you can say on the sides of this Mansba Lake, and that Jaroka Bagh was built by नूरजहाँ। जरों का बाग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम जरों का बाग कहते हैं, वो बनाया गया था नूरजहाँ के ज़रिए से। मुगल्स के टाइम पे नूरजहाँ ने उसको बनवाया था। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। और ये जो मानसबा लेक आता है, ये आता है आपका डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में आता है ये मानसबा लेक। सो दीज़ आर ऑल द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर। नेक्स्ट, व्हिच लेक इज़ नोन एज़ द ज्वेल इन द रिंग? नाउ द ज्वेल इन द रिंग लेक, दिस इज़ द लेक. You have 4 options, but you should remember Nagin Lake. You should remember Nagin Lake is known as Jewel in the Ring. Jewel in the Ring, Nagin Lake. This is in Srinagar district. This is adjacent to Dal Lake. This is in Srinagar district. Remember this district Srinagar, adjacent to Dal Lake. Dal Lake के बगल में है। अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनली ये पार्ट था किसका? डल लेक का। दिस वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ डल लेक, और इसको कनेक्ट करता है नाला आमिर खान। ये जो नाला आमिर खान, ये इसको कनेक्ट करता है डल लेक के साथ। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाला आमिर खान जो है, इसको कनेक्ट करता है डल लेक के साथ। पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि थोड़ा ये अलग हो चुका है। इसको हम नोबल लेक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम, ये जो नगीन लेक है, इसको हम नोबल लेक के नाम से भी जानते हैं। NOBL, नोबल लेक। सो रिमेंबर दीज़ फैक्ट्स, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और ये पूछे भी जाते हैं, पूछे जा चुके हैं एक्चुअली। सो रिमेंबर दिस इज़ नगीन लेक व्हिच इज़ इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। नाला आमिर खान इसको जोड़ता है किसके साथ? डल लेक के साथ, ठीक है? दीज़ आर द फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द पोर्ट ऑफ वल्लोर? ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया, यहाँ भी हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट जो है, इसी को हम पोर्ट ऑफ वल्लोर के नाम से जानते हैं। बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट का एरिया मैंने बताया था, सॉरी बांडीपोरा की में जो ये वल्लोर लेक है, इसका मैंने एरिया बताया था आपको। अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताएं मुझे कितना एरिया है इसका, क्योंकि एरिया वाइज भी अगर आप देखेंगे तो वल्लोर इज द लार्जेस्ट लेक इन J&K। ओके, नेक्स्ट, फ्लोटिंग गार्डन्स इन डल लेक आर लोकली नोन एज। जो डल लेक में फ्लोटिंग गार्डन्स हैं, उनको हम लोकली किस नाम से जानते हैं? दीज आर नोन एज राज। दीज आर नोन एज राज। अगर हम डल लेक की बात करेंगे तो डल लेक जो है, दैट इज ये जो लोकेटेड है डल लेक, दिस इज लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ जबरवन रेंज। ये आपको पता होना चाहिए, जबरवन रेंज के फुट हिल्स में लोकेटेड है हमारा डल लेक। दूसरी बात जो है, डल लेक को हम डिवाइड करते हैं 2 हिस्सों में। वन इज कॉल्ड लकुट डल, सेकंड इज कॉल्ड बुड डल। नाउ ये लोकली जो यहाँ पे है, इनको हम बोलते हैं राज। क्या बोलते हैं? राज। दिस इज द आंसर हियर। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, राज। डल लेक में भी आपको 2 आइलैंड्स मिलेंगे, देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं रूपालैंक, रूपलैंक। दूसरे को हम बोलते हैं सोनालैंक, सोनालैंक। इसको सिल्वर आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, सिल्वर आइलैंड, रूपा और सोना मतलब गोल्ड, ठीक? सिल्वर आइलैंड एंड गोल्ड आइलैंड के नाम से भी इनको जानते हैं। और ये जो हैं, ये किसने बनवाए थे? ये मुराद बख्श ने बनवाए थे। रूपालैंक एंड सोनालैंक, दीज वर बिल्ट। यहाँ पे किसने बनवाए थे? ये मुराद बख्श ने, जो कि औरंगजेब का भाई था। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा रूपालैंक और सोनालैंक किसने बनवाए थे, तो याद रखना है मुराद बख्श। मुराद बख्श जो कि औरंगजेब का भाई था, उसी ने ये बनवाए थे 1650 के आसपास। सो रिमेंबर these are very important facts that you have to remember। और हाँ, कंजर्वेशन ऑफ वल्लूर लेक, हमने देखा था कि वल्लूर लेक के कंजर्वेशन के लिए एक अथॉरिटी है, उसको हम बोलते हैं वुकमा। और कंजर्वेशन ऑफ डल लेक के लिए जो है एक अथॉरिटी है, उसको हम बोलते हैं लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, LCMA। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग एक कंजर्वेशन अथॉरिटी है, जो कि डल लेक को आप बोल सकते हैं क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच लेक इज द सोर्स ऑफ द वेशव रिवर? कौन सा लेक है जो कि सोर्स है किसका? वेशव रिवर का। वेशव रिवर का सोर्स कौन सा लेक है? ऑप्शंस क्या आपके? गंगबल, कौसरनाग, तारसर एंड मारसर लेक। गंगबल, कौसरनाग, तारसर एंड मारसर लेक। ओके, तो इसका क्या आंसर रहेगा? वेशव रिवर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें आंसर जो है वो आपका कौसरनाग आएगा, ठीक है? सॉरी, इसमें जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कौसरनाग, ठीक? कौसरनाग को हम दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विष्णुपद। कौसरनाग को जो दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विष्णुपद, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और ये सोर्स है वैशव रिवर का, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। ये वैशव रिवर जो है, दिस इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। ये जो वैशव रिवर है, दिस इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आई एम श्योर अबाउट दिस। वैशव रिवर इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे पहले भी JK SSB ने। और ये आपको याद रखना है, ये झेलम की ट्राइब्यूटरी है। ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में आते हैं। कौसरनाग का जो लेक है, ये आता है डिस्ट्रिक्ट
कुलगाम में। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। तो कुलगाम, इसको विष्णुपद के नाम से भी जानते हैं और ये जो है दिस इज शेप्ड लाइक ए फुट। ये जो लेक है दिस इज शेप इन शेप ऑफ ए फुट, ठीक है। और वेशो रिवर का ये सोर्स बनता है और वेशो रिवर इटसेल्फ इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। सो रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द आइलैंड रूपलैंग चार चिनार इन डल लेक वाज बिल्ट बाय। ये मैंने अभी आपको बताया था कि किसने रूपलैंग और सोनालैंग दोनों मैंने बताए थे आपको। रूपलैंग और सोनालैंग किसने बनवाए थे, 1650 में बनवाए गए थे। और किसने बनाए थे ये भी मैंने आपको बताया। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं अगर आपने एक्चुअली अभी तक सुना है। नेक्स्ट इज विच लेक इज नोन एज हरमुख गंगा। इनमें से कौन सा लेक है जिसको हम हरमुख गंगा के नाम से जानते हैं? फटाफट से इसका आंसर करेंगे। हरमुख गंगा हम कौन से लेक को जानते हैं? दिस इज लेक गंगाबल। गंगाबल लेक जो है, इसी लेक को हम हरमुख गंगा लेक के नाम से भी जानते हैं। ये जो लेक गंगाबल है ये आता है एट द फुट ऑफ माउंट हरमुख। हरमुख माउंटेन के बिल्कुल रास्ते में आता है ये, और ये डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में पड़ता है आपका, ठीक है। इसका डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका गांधरबल। सो रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। और हरमुख माउंटेन के ही पास है, इसलिए इसको हरमुख गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सैक्रेड है, हिंदू जो हमारे भाई हैं उनके लिए सैक्रेड है, क्योंकि जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित्स हैं वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो परफॉर्म करते हैं कौन सा? श्रद्धा एंड पिंडदान। यहाँ पे कश्मीरी जो पंडित हैं वो श्रद्धा और पिंडदान करते हैं। कंसिडर्ड एज द गंगा ऑफ कश्मीर, इसको गंगा ऑफ कश्मीर भी मानते हैं हम। तो ये आपको याद रखना है। तो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस। नेक्स्ट देखते हैं, विच लेक्स आर कॉल्ड द ट्विन सिस्टर्स। कौन से लेक्स हैं जिनको हम ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं? ये आपको यहाँ पे बोलना है। इसमें जो ऑप्शन है, विशनसर, किशनसर, तारसर, मारसर, डल लेक, नगीन लेक एंड गंगाबल एंड नंदकोल, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था गंगाबल। गंगाबल के आसपास ही एक और लेक आता है जिसको हम बोलते हैं नंदकोल। तो रिमेंबर, गंगाबल और नंदकोल दोनों डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में आते हैं। नाउ यहाँ की बात करूँ मैं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका तारसर एंड मारसर। ये जो लेक्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। अगर हम इनकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये कोलाहाई माउंटेन जो है हमारा, उसके उसी से निकलते हैं। कोलाहाई माउंटेन जो है उसी से निकलते हैं। अब ये कोलाहाई माउंटेन कहाँ पे है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ये आता है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में। तो ये जो टारसर मारसर लेक्स हैं, दीज आर प्रेजेंट इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग। ये पहलगाम के आसपास है, आरू वैली के आसपास। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तारसर और मारसर, इनको ही हम ट्विन लेक्स के नाम से जानते हैं। डल लेक और निगिन लेक आपको पता है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आते हैं। गंगाबल और नंदकोल मैंने अभी आपको बताया। विशन सर और किशन सर पे शायद आगे भी क्वेश्चन है, तो ये हम डिस्कस अभी करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट्स अबाउट दिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सर लेक ड्रेन्स इनटू व्हिच स्ट्रीम। ये जो मार्सर लेक है कौन से स्ट्रीम में ड्रेन आउट होता है, यानी कि कहाँ पे इसका पानी जाके कौन से स्ट्रीम से मिलता है? तो मार्सर लेक की अगर मैं बात करूँ, ये इसको हम बोलते हैं शराब कोल, ठीक। इसको हम शराब कोल के नाम से जानते हैं। वहाँ पे जाके ये ड्रेन होता है, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये फिर जाके फीड करता है मुगल गार्डन्स को। ये जो शराब कोल है, ये ड्रेन इसमें होता है, और ये शराब कोल फिर मुगल गार्डन्स को फीड करता है। मुगल गार्डन्स में ये पानी चला जाता है, शराब कोल। सो रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। अगर हम बात करेंगे लिदर, ये भी आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, लिदर रिवर। और सिंध रिवर, ये तो आता है श्रीनगर के सिंध नाला। ये जो है ये तो सेंट्रल इसमें आता है कश्मीर में। बाकी तो ऑप्शन का ठीक है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच लेक इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ वेटलैंड्स। अब इनमें से कौन सा लेक ऐसा है जिसको हम बोलते हैं क्वीन ऑफ वेटलैंड्स? ओके, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कौन सा लेक है जो क्वीन ऑफ वेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो इसका आंसर रहेगा आपका होकरसर लेक, ठीक है। होकरसर लेक की अगर मैं बात करूँ, इसी को हम क्वीन ऑफ वेटलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट आपका जो है श्रीनगर में आता है। होकरसर लेक भी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में ही आता है, ये आपको याद रखना है। और ये होकरसर जो है, मैंने आपको बोला भी था कि जे&के में 4 रामसर साइट्स है, उनमें से एक है होकरसर लेक। रामसर साइट ये भी है। होकरसर लेक जो है, दिस इज ऑल्सो रामसर साइट, जो कि 2005 में इसको इसका स्टेटस मिला था अंडर रामसर कन्वेंशन। ये आपको याद रखना है। अगर हम इसका लोकल नेम याद अगर आप रखना चाहें तो इसको होकरा रंज भी बोलते हैं। होकरसर लेक जो है, इसको होकरा रंज भी बोलते हैं, लोकल नेम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ वेटलैंड्स के नाम से जब भी आएगा क्वेश्चन तो याद रखना है होकरसर लेक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तुलियन लेक इज लोकेटेड नियर। आपके ऑप्शंस इसमें हैं, आपको बताना है कि तुलियन लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तुलियन लेक किसके नज़दीक लोकेटेड है। तो इसके ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है गुलमर्ग, दूसरा है आपका गुलमर्ग के बाद सोनमर्ग, पहलगाम एंड पटनीटॉप। सो लेट्स फाइंड आउट। ये जो होकर तुलियन लेक है ये आता है आपका पहलगाम के आसपास। तो रिमेंबर इसका आंसर आपका रहेगा पहलगाम। तुलियन लेक इज लोकेटेड नियर पहलगाम। ये जो तुलियन लेक है, दिस इज सिचुएटेड बिटवीन पहलगाम और जो बाईसरन
एरिया है, पहलगाम और बाइसरन एरिया एंड बाइसरन। यहाँ पे आता है तुलियन लेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच लेक रिमेन्स फ्रोजन टिल मिड जून नियर अफरवत पीक? कौन सा लेक ऐसा है जो कि फ्रोजन ही रहता है, यानी कि फ्रीज हुआ होके रहता है, यानी कि ज़्यादातर उसमें आपको बोल सकते हैं कि स्नो और आइस की फॉर्म में रहता है। कब तक? मिड जून तक, ठीक है। और ये अफरवत पीक के नज़दीक है। अब अफरवत पीक कहाँ पे है? गुलमर्ग में, ठीक है। अफरवत पीक कहाँ आता है? गुलमर्ग में। और ये अफरवत पीक पीर पंजाल का हिस्सा है, ठीक है। तो ये गुलमर्ग में आता है और ये जो है इसका नाम ही है अलपत्थर लेक, ठीक है। अफरवत के साथ आप याद रख सकते हैं, अलपत्थर थोड़ा-सा मिलता-जुलता है, तो ये आता है यहाँ पे। ये कहाँ पे आएगा? डिस्ट्रिक्ट आपका बारामूला। कहाँ पे आएगा? डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो यहाँ पे सॉरी, अफरवत लेक जो है, इट इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ अफरवत पीक, जो कि गुलमर्ग में आता है एंड ये रहता है फ्रोज़न टिल जून। नेक्स्ट, सोनालैंक गोल्ड आइलैंड इन डल नेक वाज़ बिल्ट बाय। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बताया, तो मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। आंसर आपका ये है और आप मुझे कमेंट्स में इसके बारे में बोल सकते हैं, ये कब बिल्ट किया गया था? ये जो है सोनालैंक कब बिल्ट किया गया था? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विच अथॉरिटी वाज़ एस्टैब्लिश्ड इन 2012 फॉर वल्लू लैक कंजर्वेशन? ये भी मैंने आपको बताया, ये आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। कमेंट प्लीज़। कमेंट्स में आप ये मुझे बताएँगे कि कौन-सी अथॉरिटी जो है 2012 में बनी थी वल्लू लैक के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट इज़ व्हिच लेक इज़ बिलीव्ड टू बी द अबोर्ड ऑफ किंग ऑफ स्नैक्स? कौन सा लेक ऐसा है जो कंसिडर किया जाता है दैट इज़ द अबोर्ड ऑफ द किंग ऑफ स्नैक्स? अबोर्ड ऑफ द किंग ऑफ स्नैक्स। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको शीशनाग लेक याद रखना है, शीशनाग लेक, ठीक है। शीशनाग लेक जो है ये कंसिडर किया जाता है, दिस इज़ द अबोर्ड ऑफ द शीशनाग लेक जो है, इट इज़ कंसिडर्ड एज़ द अबोर्ड ऑफ द किंग ऑफ स्नेक्स, अबोर्ड ऑफ द किंग ऑफ स्नेक्स। सो रिमेंबर दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पहले। दिस इज़ कॉल्ड द अबोर्ड ऑफ द स्नेक्स, शीशनाग लेक। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ गडसर लेक इज़, गडसर लेक की मीनिंग क्या है? ओके, तो गडसर लेक की मीनिंग आपको बतानी है। लेक ऑफ फ्लावर्स, लेक ऑफ फिशेस, लेक ऑफ गोल्ड, ब्लू लेक। ये जो है गडसर लेक, इसको हम कहते हैं लेक ऑफ फिशेस, ठीक है। गडसर लेक ऑफ फिशेस कहा जाता है इसको, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। गडसर लेक इज नोन एज लेक ऑफ फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आचार लेक इज कनेक्टेड टू डल लेक बाय, आचार लेक जो है डल लेक के साथ कनेक्टेड है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? रिवर झेलम, नाला आमिर खान, तेलबल नाला या तुसंत कॉल, ठीक है। तेलबल नाला या तुसंत कॉल। सो यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आंचार नाला की अगर मैं बात करूँ, आंचार लेक जिसको हम बोलते हैं, सॉरी आंचार नाला नहीं, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। जब हम नगीन लेक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था वो कनेक्टेड है किसके साथ? डल लेक के साथ वाया कोल, वाया है नाला, दैट्स कॉल्ड एज आमिर खान नाला। तो यहाँ पे भी आपको याद रखना है अंचार लेक जो है, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू डल लेक वाया नाले आमिर खान। दिस इज इंपॉर्टेंट, नाले आमिर खान, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ लास्ट क्वेश्चन हियर, व्हिच लेक वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 1990? इसका भी मैंने पहले ही आपको बताया है। यू कैन कमेंट द आंसर, सो प्लीज comment the answer, and we are going to discuss the next part of this lakes of Jammu and Kashmir tomorrow. By till then, take care of yourself, and if you are not subscribed, please subscribe. And also, if you have any query, any question, you can ask me about that in the comments. Please like and share this video as well, and subscribe so that you can get the continuous notifications. Thank you very much.